so we are starting with part C, management communication. Communication is when one person talks to another person. जब एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है. When the one person speaks something, that's a communication from his side. When the another person replies, that's a communication from their side. And when the question comes, when the communication is completed, for example, question आता है. It is basically when the one person speaks, another person gives the feedback. Another person understands that and gives the feedback. एक आदमी जब बोलता है और दूसरा आदमी उसके ऊपर समझ के फीडबैक देता है, तो वो एक कम्युनिकेशन. दैट्स अ फेयर कम्युनिकेशन. जब हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो हमारे सिलेबस में है, द वर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन बिटवीन businessmen or businesswomen for the mercantile purpose, not for the personal purpose. उस पर्पज से अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो वो क्या होता है? एग्जाम पर्पज से पढ़ेंगे प्योरली हम इसे खाली. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ? द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कम्युनीज. द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कम्युनीज. आप इसको सर्कल अंडरलाइन करके 1 मार्क में डाल सकते हो. One cannot communicate to himself or herself. एक आदमी अपने आप से बात कभी भी नहीं कर सकता है. We can never talk to ourselves in terms of business communication. मैं अपने आप को सामान सेल नहीं कर सकता, something like that. हम अपने आप से नहीं कर सकते. Okay. तो ये था आपका communication. When next para is talking about business communication. Business communication. When one communicates to transaction, some commercial activity that is providing goods or services with the intention of generation of profit. तो business communication क्या होता है? जब एक आदमी किसी और से बात करता है in terms of selling of goods or selling of services for generation of profits. Simply, that is the only line which you have to cover. Bracket कर लो, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? समझ आ गया? ठीक है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स होते हैं. सबसे पहला कम्युनिकेशन, यू एज आई सेड, यू कैन टॉक टू योरसेल्फ इन द कम्युनिकेशन, सो इट इज अ टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. एक बार आपने बोल के छोड़ दिया इनफ नहीं है, आपको बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता है. मैं आपको बोलूंगा, आप मुझे बोलोगे. आर वी टॉकिंग राइट नाउ? क्या हम बात कर रहे हैं अभी? हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? We might not be talking. दिया ना आपने अभी, ऐसा किया. समझ आ गया? तो कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट बाय वर्बल. कम्युनिकेशन इज वर्बल, नॉन वर्बल, गेस्चर, पोस्चर, कुछ भी हो सकता है. ओके. You may not like the way I'm behaving right now, so you may make some other facial. You may like, you may behave in another way. You may understand, then you might be nodding. You might not be understanding, then you might not be nodding. You might be looking at the wall that I'm not interested. There are a lot of ways to talk. There are a lot of ways to talk when even without even speaking a single word, 2% can talk. हो सकता है ना? इट इज पॉसिबल. आप हाथों को, पैरों को हिलाए बिना भी बात कर सकते हो, आंखों से, बाय शोइंग एंगर, ठीक है, और बाय शोइंग टीयर्स. हाउ डज अ लिटिल बेबी कम्युनिकेट विद द मदर? by crying, by showing the tears. He explains that I am hungry or I am not comfortable. So communication is just not a verbal thing, it's non-verbal as well. Equally उतना ही non-verbal होता है. ठीक है. Communication ongoing होता है. Communication consists not only of facts but also emotions as well. As I said, communication खाली आपके facts के बारे में नहीं होता है. Some at times we talk about emotions as well. So business communication is not about emotion. Business communication is only about facts. Business communication facts के बारे में बात करते हैं. ठीक है. So is it a communication? ये communication है? टू तो नहीं, विक्ट्री. ठीक है. अभी आप लोग जो ये फोटोज खिंचवाते हो,
उसमें भी ऐसा करते हो, तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, मैनी पीपल डज, करते हैं कि नहीं करते, है ना? ऐसा 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 ऐसा, किधर भी इधर, तो ये क्या मतलब है इसका? लाइक इसका मतलब मुझे पता है, ऐसे करते हैं, चलो वो भी, चलो एक स्टाइल हो गया या कुछ भी, पेप्सी ने दे दिया वो, बट द थिंग इज ये हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब होता है विक्ट्री। जैसे बहुत सारे लोगों को एक साथ संदेश देना होता था और इतनी दूर आवाज नहीं जा पाती, तो जो फाइटर्स होते थे वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को ऐसा बोलते थे कि वी हैव वॉन द बैटल, हम जीत चुके हैं, कि वो फोटो दे देते थे ऐसे कि इतना, क्योंकि पहले लिमिटेड वर्ड्स में होता था, टेलीग्राम वेलीग्राम एक्सेट्रा, तो जिस भी तरीके से हमने कम्युनिकेट करना हम ऐसा कर लेते थे, ठीक है, बाय शोइंग एक्सप्रेशन इन द मीडिया ऑल्सो, क्योंकि मीडिया में फोटो आती है हमारी, बोल तो नहीं सकते, छोटे से एक एडवर्टीजमेंट के अंदर, छोटी फोटो के अंदर बहुत सारा मैसेज देना था, तो ये बोलते थे कि वी हैव वॉन, विक्ट्री हुई है। तो ये ऐसे का क्या मतलब होता है? ये ऐसे करते हैं ना कुछ लोग, और कुछ लोग फोटोज में भी ऐसे दिखते हैं मुझे, ऐसे या ऐसे होते हैं, क्या मतलब होता है उसका? नथिंग, नॉनसेंस, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉनसेंस, जिस चीज का कोई मतलब नहीं है ना, जिस व्हेन यू कांट कम्युनिकेट एनीथिंग, दैट्स अ अटर नॉनसेंस, ठीक है, वो है इलिटरेसी, अनपढ़। कहीं देख लिया ऐसा करते हुए, देखो किसी सेलिब्रिटी को, सर वो जीत के आया है, ओलंपिक जीत के आया, तो उसने ऐसा किया, ठीक है, हम उसको देखा देखी भी ऐसे कर रहे हैं, फिर उसको धीरे 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 इधर भी ले आए, सब कुछ हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट योर इलिटरेसी। तो जो साइन जिस चीज के लिए बने ना, वो थप्पड़ मारने का साइन ये होता है, किसी को ऐसे कर दो, क्या मतलब है इसका? कुछ भी नहीं, और फिर वो भेड़चाल है ही हमारे पास, एक ने ऐसे किया, दूसरा तीसरा ऐसे ही करेंगे। सो देयर इज नो वर्ड लाइक दिस, ये सब कुछ भी नहीं है। तो एक ही साइन होता है, दिस इज अ विक्ट्री साइन। तो यू कैन कम्युनिकेट इवन विदाउट स्पीकिंग ऑल्सो। सो इमोशंस बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक वर्ड? डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है इज चेंज विद द सिनेरियो, इज दैट सो? हाँ, अभी क्लास में आने से पहले सिनेरियो अलग था, क्लास में आने के बाद अलग होता है। When you talk to your parents, the scenario is different. When you talk to your seniors, when you talk to your God, when you talk to your friends, when you talk to your siblings, there's everywhere it's different. When you are sitting in class, you're talking different. When you're sitting in your home, you might be talking different. When you sit in your with your God, prayer करते टाइम आपका communication का mode अलग होता है. It change with scenario, it change with the time, it change with the people. It's a dynamic process. Agree? ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड। व्हाई डू वी टॉक? अपनी छोड़ो, नॉर्मल लोग क्यों बात करते हैं? पर्पसली, कोई ना कोई पर्पस होता है उनका बात करने का, नहीं? तो बिजनेस में बात किस वजह से होती है? कोई ना कोई गोल है, पर्पस है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज पर्पस ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि बोर हो रहे, चल आधा घंटा बात कर लेते हैं, लास्ट में बोलते हैं चल अब और कुछ नहीं है, और बता और बता और बता, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो वो पर्पसलेस है, इसीलिए वो बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है। एंड कम्युनिकेशन इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। अच्छा, एक दिन मैंने, अभी हमने लास्ट क्लास में शायद बात हुई थी, व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस? एनीवन हु कैन टेल मी? इंटरडिसिप्लिनरी है, लास्ट क्लास में मैंने बताया इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। It's not just related to science, it is also related to other subjects like economics, psychology. तो क्या communication psychology से related हो सकता है? Certainly, it's related to your psychology. The way you communicate, you explain about what kind of psychology you carry. बोलते नहीं हम, जैसे हम बात करते हैं कि किस बैकग्राउंड से, कैसी सोच है तुम्हारी, बात करते हैं ना, तो communication is also related to psychology. So communication is interdisciplinary science as well. It shows your attitude, body language, बात करने का तरीका पता चल जाता है। When you talk to someone, तो हम तो खुद ही खराब है, बट अगर कोई अच्छे इंसान है, वो जब बात करते हैं किसी से, तो दूसरे आदमी की बॉडी लैंग्वेज भी चेक करते हैं। They do talk. When you are sitting in a business interview, जब आप ऑफिस के इंटरव्यूज के लिए बैठे रहते हो, ट्रस्ट मी, फर्स्टली आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है। हाउ आर यू सिटिंग, किस तरीके से आप बैठे हो, मतलब क्या आप लेग्स क्रॉस करके बैठे हो, when someone is sitting over there, क्या आप लेग्स क्रॉस करके बैठे हो, मतलब राजा नहीं होना भी, ठीक है, समझो मेरी बात। जब हम नॉट हियर, जब आपके इधर या इधर कोई बैठा हो, तो आपको लेग्स क्रॉस नहीं करना चाहिए,
आप अपना जूता किसी की तरफ नहीं करते। When someone is not sitting, it is okay, but when the moment someone comes up, आपको comfortable, but कई लोग आप देखोगे वेटिंग रूम्स में एक्सेट्रा में अपना मोबाइल में लगे रहते हैं और पैर आपके मुंह की तरफ होते हैं होता है ना, ये चीज देखते हैं। दैट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, बिना बात किए भी उस आदमी के लिए आपका क्या इंप्रेशन जाता है? ठीक है, बदतमीज है। अपने पास एक वर्ड होता है बदतमीज है, राइट? और हम अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने साथ में कोई तो उसको बोल के निकाल लेते हैं कितना बदतमीज है। दैट इज हाउ वी कम्युनिकेट। तो वो आदमी ने कम्युनिकेट कर दिया कि मैं बदतमीज हूँ, ठीक है, मुझसे होप मत रखो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो योर कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज आपका कम्युनिकेशन का तरीका होता है। खाना खाने का तरीका क्या उससे पता चल जाता है आदमी अग्रेसिव है कि नहीं? यू माइट डोंट नो, बट द वन हु ईट्स फास्ट is always aggressive and uncomfortable internally. Scientifically proved that the one who eats fast is aggressive and internally uncomfortable and frustrated person from the life. आप अपनी चेक कर सकते हो लाइफ में, मतलब जिसको शांति नहीं अपनी लाइफ में, चाहे रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू पर्सनल रिलेशन, रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू स्टडीज, एनीथिंग, those who eats fast and those who eats very calmly, वो प्रूव भी नहीं है कि वो बड़े सेटिस्फाइड है, बट ये पक्का है वो बड़े अनसेटिस्फाइड हो। ठीक है, सो खाना खाना, स्टडी करना, परसेप्शन, आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड इज नॉट दैट विच यू थिंक इज एटीट्यूड। एटीट्यूड वो नहीं होता है यहाँ पर कि टॉक टू माई हैंड, दैट्स नॉट एटीट्यूड, दैट्स योर बिहेवियर। So there's a difference between your attitude and your behavior. Attitude is the way you carry yourself, the way you talk, आपका व्यवहार। ठीक है, तो एटीट्यूड तो सब में होता है, इवन आई हैव एंड यू हैव, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरीथिंग। देयर इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, देयर इज अ नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड इज वन हु टेक्स एवरीथिंग, जो क्रिटिसिज्म को भी लेता है, द वन हु टेक्स एवरीथिंग, द वन हु स्टे काम, द वन हु ट्राई टू टॉक, एंड द व्हेन मोमेंट यू क्रॉस योर लिमिट्स, द वन हु बर्स्ट आल्सो। ठीक है, दैट्स एटीट्यूड। अदरवाइज एक एटीट्यूड वो होता है कि आप समझ गए हो बाकी दूसरे वाला कि कौन से वाला होता है, यू नो, वही वाला है। और मतलब दिमाग में आपके पास एक अक्कल नाम की चीज भी नहीं है, बट स्टिल यू शो पीपल दैट यू नो यू आर सेलिब्रिटी। वो एक नेगेटिव एटीट्यूड है। व्हेन यू आर नॉट डाउन टू अर्थ, दैट्स आल्सो एटीट्यूड। यू आल्सो कम्युनिकेट इन दैट आल्सो, वो भी आप कम्युनिकेट करते हो। तो मतलब बीच बीच में मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, आई एम टेलिंग यू फॉर योर लाइफ आल्सो कि हमें कैसा बनना चाहिए। So what are the importance of communication? Communication के हाँ जी, communication। अच्छा, लास्ट पॉइंट के अंदर जैसे एक बच्चा कह रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज होती है, जो मैंने आपको भी बताया था, हाउ डू यू सिट एंड एक्सेट्रा, दैट्स एंथ्रोलॉजी। पीपल स्टडी योर बॉडी लैंग्वेज। लेट मी टेल यू वन ऑफ द इंसिडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। एंथ्रोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। व्हेन हिलेरी क्लिंटन, यू नो हु इज हिलेरी क्लिंटन? Yes. He was the president candidate with along with Barack Obama Donald Trump and Barack Obama as well. No, they are from पहले भी हारी थी वो and दोबारा भी हारी थी वो। ठीक है, okay. So anyway, she is also in the ministries also, White House में ही है। and she is the wife of ex-president. So yeah, Bill Clinton, okay, and Chelsea Clinton's mother, okay. Anyways, coming back to the point is when she came to India, जब वो भारत आई, सोनिया गांधी was our president that time, and वो अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आई थी। एंड सोनिया गांधी अपने यहाँ इटली की रिप्रेजेंटेटिव, इटली से जो है, तो शी इज ऑल्सो अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो व्हेन शी केम टू इंडिया, शी मेट टू सोनिया गांधी, उन्होंने ऐसे हाथ किया। ठीक है, हम तो ऐसे कर रहे थे दोस्तों में, पता ही नहीं चलता, ऐसे 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 भी करते हैं हम सब कुछ, बट शी केम एंड शी give her hand like that. Okay? This means I'm dominating. This means I'm dominating. आपको अपना हाथ ऑटोमेटिक ऐसा करना पड़ेगा, बट वो सोनिया गांधी थी, उसने क्या किया, उसने भी ऐसा ही किया। इट्स अ सेकंड्स का गेम होता है ये सब। ठीक है, तो उसने ऑटोमेटिकली अपना हाथ न्यूट्रल कर लिया, उसने भी न्यूट्रल कर लिया। दैट्स अ कम्युनिकेशन। दैट मैं डोमिनेट होने वाली, मैं डोमिनेट नहीं होने वाली। ठीक है, मेरे पास भी बहुत पैसा भाई, मैं क्यों डोमिनेट हूँ? वर्ल्ड की तुझसे तो ज्यादा है। यू डोंट नो हाउ मच आई वांट।
सो दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। वो भी उसने किया कि मेरे को डोमिनेट नहीं होना है। और यही अगर अपना जैसे इमरान खान था, उसने शेक हैंड किया, ठीक है, तो उसने ऑफकोर्स ऐसे ही पाम लेंगे अपना कि हाँ आई एम रेडी सरकार, जो आप कहोगे मैं तैयार। दिस इज ऑल्सो शेक हैंड। ये अभी नहीं समझ आता आपको, जब आप अच्छे ऑफिस में काम करते हो ना, वहां पर ये चीजें बहुत मैटर करती है। हमें तो पता ही नहीं है, मतलब एक अलग ही दुनिया, एक पैरेलल जिंदगी भी और है, जो बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करती है हमें। हमें पता ही नहीं है वो क्यों हंस रहे हैं हमारे ऊपर, क्यों खुश हो रहे हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या। अंग्रेज अब जैसे हमसे शेक हैंड करते हैं, ठीक है, तो दे डू इट लाइक दिस, ठीक है, एंड देन दे लाफ। हमें लगता है शायद हम बड़े खूबसूरत है इसलिए हंस रहे हैं, ठीक है, वी माइट बी लुकिंग गुड एंड हमसे बात करके उनको अच्छा लगा, बट बेसिकली दे शोज दैट यू नो वी आर डोमिनेटिंग, और हमें लगता है कि स्टाइल है ये, चलो ठीक है। तो इट इज बेसिकली डोमिनेटिंग एंड डोमिनेटेड, ये एक एंथ्रोलॉजी का पार्ट है। देन साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ परसुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड, जो मैंने आपको बताया एक लेग्स क्रॉस वाला, या दैट्स आल्सो योर परसेप्शन हाउ यू टॉक, ठीक है। एंड सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। जैसे वोटिंग बिहेवियर आप देखते हो कि लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है कंप्लीटली वोटिंग के टाइप पे, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। जैसे ये बताते नहीं हमारे यहाँ कि ये इलेक्शन का वो आने वाला है, पोल्स एक्सेट्रास बताते ना हमारे यहाँ, व्हाट इज दैट, दैट्स इज बेसिकली स्टडी वोटिंग, दैट इज सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। वो स्टडी होती है, लोगों का बिहेवियर बताते हैं, दे टॉक टू पीपल, सी देयर एग्रेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डिसाइड, उस बेसिस पे वो चीजों को डिसाइड करते हैं। दैट्स द स्टडी ऑफ पोल साइंस, ठीक है, एंड हैव प्रोवाइडेड इनसाइट टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। इज एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन से क्या फायदे होते हैं? द मोर यू कम्युनिकेट द मोर साइजेस इंक्रीजेज, बट इज नॉट ऑलवेज अ एडवांटेज, हमेशा एडवांटेज नहीं है। द मोर यू कम्युनिकेट, the more you communicate, you definitely increase the size, but more you get the conflicts. जितने ज़्यादा लोगों से बात करते हैं उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होते हैं, बट हाँ कम्युनिकेशन जरूरी है क्योंकि इससे आपका साइज बढ़ता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट्स को बचने के लिए एक तरीका होता है अच्छी बात करके, टॉक नाइस। एक चीज थंब रूल ऑफ द लाइफ, डोंट एवर से बैड अबाउट एनीवन। बुरा है ना वो है, लेट इट बी, बट अपने मुंह से अगर आप नहीं बोलते हो, सर्टेनली यू विल मेक इंक्रीज इन द साइज, साइज बढ़ेगा। साइज अपना नहीं, अपने सर्कल का, एज ए पीआर, पर्सनल रिलेशनशिप, वो बढ़ता है आपका, ठीक है। तो इंक्रीज द साइज। सेकंड इज ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, द मोर यू कम्युनिकेट द मोर यू गेट टू नो व्हाट इज गुड इन यू, आपके अंदर अच्छा है क्या, आपको पता कैसे चलेगा। बात या फिर किसी को कुछ समझाने से, फॉर एग्जाम्पल इफ सपोजिंगली इफ आई स्टार्ट टीचिंग टू यू एंड I got to know that you know I am teaching accounts, I'm teaching economics, I'm teaching law, and I'm teaching management as well. Income tax and other subjects. But slowly and gradually I realized that people are more satisfied in taxation and law from me. And I got the feedback from that, and sir, you are teaching awesome to the law, you're teaching taxation very nicely. But the same response I was not getting in accounts or maths or other subjects. So what is the communication to me that you know you should teach X subject and don't teach Y subject, ठीक है? Because I got to know my specialization. मेरे को मेरी specialization. The same is with you. The moment you communicate, the moment you talk with people, आपको शायद नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें लोगों से मिलेगी, बट उसमें आपने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं अगर हम, तो हमें क्या मिलता है, आपको अपने आप को जानने का तरीका मिल जाता है कि वट यू आर गुड इन, वट यू आर नॉट गुड इन। अच्छा सर मेरे बारे में तो कोई अच्छा बोलता ही नहीं, मैं कुछ भी करूँ, तो ठीक है ना, दैट मीन्स यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन समथिंग एटलीस्ट। When you are confident, start improving yourself in something, then you will get a specialization in that subject. अभी आपके पास किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं, सब मुझे सब में अच्छा बोल रहे थे, ठीक है, यू माइट बी वेरी गुड इन ऑल, ठीक है। देन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। सर कम्युनिकेशन आज की डेट में अच्छा होना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग पीपल आर वेरी नाइस एट कम्युनिकेशन। यू हैव सीन पीपल, अभी तो आप लोग यू माइट नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ दिस मच, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन द कॉर्पोरेट, आपको फील होगा कि सर हम कहाँ, एक अलग जिंदगी और चल रही है। कैसे? सर द वे दे टॉक, the way they talk, if you're a senior or if you have any family member and etc, if you talk to them who are working, तो काफी अलग एक स्केल पे काम करते हैं जॉब में,
आप उनसे बात करके देखो, द वे दे टॉक इज कम्प्लीटली डिफरेंट। उनका बात करने का नजरिया, बात करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। दे आर वर्किंग इन सम गुड कॉर्पोरेट, अच्छे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो द वे टॉक इज डिफरेंट, द थिंकिंग वे डिफरेंट, तो बात करने का, सोचने का हर तरीका अलग होता है। द वे द बिजनेसमैन टॉक्स इज डिफरेंट। हाँ, एक लैंग्वेज जरूर फर्क पड़ती है, मे बी दे आर टॉकिंग इंग्लिश एंड द बिजनेसमैन इज टॉकिंग हिंदी, बट द वे दे टॉक इज डिफरेंट। हम आज भी किन चीजों में इन्वॉल्व पड़े, कलर, ड्रेस, पेजेस, ये फेसबुक, इनमें पड़े। बट इज दैट अ बिजनेसमैन हु इज अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीज इडियट हु इज नॉट यूजिंग दैट मच फेसबुक, हु इज नॉट ऑन द इंस्टाग्राम, who is not always on the WhatsApp, who is not sending you forwarded messages, he is not idiot, he is intelligent. Why? That's not making any money. वो पैसा नहीं बना रहा है, और जो चीज़ पैसा नहीं बना रही उसके लिए वो क्या है, यूजलेस है। He is thinking that every minute second is a money for him, so that he is not wasted. ठीक है। सो कट शॉर्ट कॉम्पिटिशन, देन ट्रेड यूनियन मूवमेंट। बात करने से ट्रेड यूनियन समझते हो ना, बिजनेस करने के यूनियन, क्या उनके मूवमेंट डिसाइड हो जाते हैं? लीडर, द वे लीडर विल कम्युनिकेट, क्या उसका मूवमेंट इधर क्या कर रहा है डिसाइड होता है। ह्यूमन रिलेशन, द मोर यू टॉक द मोर यू मेक द ह्यूमन, द मोर यू टॉक नाइसली, द मोर यू टॉक नाइसली यू मेक ह्यूमन रिलेशन। नाइसली जरूरी है। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, इज टॉकिंग वेरी नाइसली, लॉट गुड रिलेशनशिप, नॉट इवन जस्ट इन इंडिया, आउटसाइड द इंडिया एज वेल, वर्ल्ड लेवल पे उनके अच्छे रिलेशनशिप बन गए। यही कोई और होता है इनके पास ऑलरेडी एक अच्छा बना बनाया कम्युनिकेशन फैमिली की तरफ से मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस, ठीक है, दे कुड नॉट मेक गुड रिलेशनशिप, शायद उनका जो था वो भी खो दिया होगा। व्हाई? जस्ट बिकॉज देयर वे ऑफ टॉकिंग एंड एटीट्यूड वाज नॉट नाइस। लॉट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज यू कैन सी who don't have a family background of being in the Bollywood or celebrities, but उन्होंने फिर भी अपना struggle and the way they talk is a acting is also talk, तो उन्होंने अपना बनाया। और कुछ ऐसे भी थे इनके पास सब कुछ अवेलेबल था, फिर भी they could not do better, तो उनका जो था वो भी उन्होंने यूज कर दिया, ऐसे भी है, राइट। देन ह्यूमन रिलेशन, देन पब्लिक रिलेशन, देन पर्सनल सेट्स, कम्युनिकेशन। एज आई ऑलवेज सेज वन थिंग, कम्युनिकेशन क्या आपका पर्सनल सेट्स। सर आप कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, ये चीज तो कहीं भी चाहिए, क्लियर। तो हमें अपनी एसेट्स को इंक्रीज करना चाहिए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए मैसेज देने के कुछ तरीके होते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज वर्बल, अनदर इज नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो वर्बली जैसे एक तो हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वैसे मैं कर रहा हूँ अभी वर्बल कम्युनिकेशन, आप नॉन वर्बल में कर रहे हो। ओरल, वर्बल में कौन कौन सा आ जाता है? ओरल, रिटन, विजुअल, ऑडियो विजुअल। विजुअल ठीक है, ऑडियो विजुअल, आजकल ऑडियो विजुअल ज्यादा चलते हैं। विजुअल हो गया सीसीटीवी, तो ओरल ठीक है, वर्बल आपके पास बुक पढ़ी है, विजुअल सीसीटीवी, ऑडियो विजुअल आपका वीडियो, अगर वीडियो कैप्चर, ठीक है। नॉन वर्बल में कौन कौन से आते हैं? इंटरेस्टिंग ज्यादा कौन सा रहेगा? इंटरेस्टिंग, सब कुछ में इंटरेस्टिंग कौन सा सबसे ज्यादा मजेदार? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब आप बिना बोले बहुत कुछ कह देते हो, ठीक है, बिना बोले कहना उसमें मजेदार है, बोल के क्या कहना। तो वर्बल है, नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन से आते हैं? रिटन, रिटन में कौन सबसे पहला है? वर्बल में ओरल, सबसे पहला रिटन भी उन्होंने। अच्छा, रिटन में कम्युनिकेशन बिजनेस के सेंस में कौन कौन से आते हैं? मेमो, मेमोस होता है ना, स्लिप्स, हाँ, रिपोर्ट्स, ऑफिस ऑर्डर्स, नोटिसेस, ग्राफ, चार्ट, न्यूज़लेटर्स, ईमेल, फैक्स, फॉर्म। अब इनमें एक्चुअली क्या है ना, बुक काफी समय से अपडेट नहीं हुई है। इट्स बीन मोर देन 10 years, 10 to 13 years मैं देख रहा हूँ इसको, ये सेम ही कम्युनिकेशन पड़ा है। आज से जो 13 साल, हो सकता है उससे पहले हो, आज से जो 10 से 15 साल पहले ईमेल जो था हर किसी को नहीं आता, ठीक है। फैक्स, हर किसी, फैक्स बड़ी जबरदस्त चीज थी। तो आपको लग रहा है कि ये बुक में इतनी सारी चीजें लिखी है, तो सर ये क्यों? कि उस समय की बात है जब ईमेल सबको नहीं आता था, माइट भी आप में से भी किसी को नहीं आता हो आज।
सो आगे ग्राफिकल तरीके से पूरा प्रॉपर पिक्टोग्राफिकल तरीके से बताया हुआ है कैसे ईमेल करना है, आप वो भी सीख सकते हो। एंड बाकी जो नाम है आजकल बहुत नॉर्मल हो चुके हैं, जैसे मेमोस, रिपोर्ट्स, ऑफिस ऑर्डर्स, स्टाफ न्यूज़लेटर, ईमेल, फैक्स, ये सब आपको नोटिस, मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसमें से कुछ वर्ड से बाद में आप नोटिस, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये दोनों कंपनी लॉ के पार्ट आप इनके आगे लिख सकते हो। कंपनी लॉ, मिनट्स ऑफ मीटिंग, नोटिसेस, बट सर मेमो तो वो होता है ना जो हम बिल बना कर देते हैं, वो कम्युनिकेशन। अरे आपने मुझे फीस दी, मैंने आपको रिसीट दी, डिड आई कम्युनिकेट दैट योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड? एक एक चीज कम्युनिकेशन, हर एक चीज कम्युनिकेशन है। आप उठ के बाहर चले गए, यू आर कम्युनिकेटिंग दैट इधर यू आर गोइंग फॉर ब्रेक और समथिंग। अगर क्लास खत्म होने के बाद मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ ऐसा करके, दैट मीन्स क्लास खत्म, घर जाओ। या फिर मैं ऐसा नहीं करता कई बार, ठीक है, दैट मीन्स ओवर, गो टू योर होम। बहुत सारी चीजें होती है कम्युनिकेट। हम दूर दूर खड़े होते हैं, रोड के एक ऑपोजिट साइड में खड़े हैं, ठीक है, तुम ऐसे नहीं करते किसी को लेके आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और चला जाए, ठीक है। तो इतनी सी चीज कितनी बड़ी बात कह देती है, यू मे गो नाउ, ठीक है, यू टर्न लेके मेरे पास आ जा। तो हमने देखो इंडिया से तो कुछ ज्यादा ही हाईली डेवलप किए हुए हैं गेस्ट जो साइन लैंग्वेज होती है। हमारी जो साइन लैंग्वेज है तो वो तो सर वर्ल्ड लेवल पे बहुत कम पड़ जाएगी हमारी साइन लैंग्वेज जो है, ठीक है। अगर हम उसको बोलते कि बाइक खड़ी करके टाप के आ जाए, तो कितनी बड़ी बात उसको बोलनी होती है एक, ठीक है। यू कैन पार्क योर बाइक प्रॉपरली एंड देन यू कैन कम बाय क्रॉसिंग द रेलिंग, ठीक है। तो क्या करना है सिंपली, तो लॉट ऑफ वेज आर देयर इन द इंडियन। ट्रैफिक वगैरह जब होता है रोड पे तो लोग जो होता है ऐसे हाथ दिखा दिखा के क्रॉस कर देते हैं। इंडिकेटर की जरूरत है हमारे को, पता नहीं क्यों कंपनीज इंडिकेटर लगाती है हमारे यहाँ। हमारे व्हीकल में इंडिकेटर लगे होते हैं ना, ठीक है। लोग कैसे इंडिकेट करते हैं कि हमें घूमना है कि नहीं घूमना, वो खुद पक्षियों की तरह, बर्ड्स की तरह उड़ने लग जाते हैं। नहीं देखे कभी किसी ने? नहीं देखा। जिसको यू टर्न लेना होता है तो वो यू करने लग जाता है, करता है कि नहीं करता। तो हमारी जो साइन लैंग्वेज है वो सब किताबों से भी कई गुना आगे बढ़ चुकी है, तो वो तो छोड़ो, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे ना, तो हमारी साइन लैंग्वेज भी तो बहुत एक्सट्रीम लेवल आगे चली जाएगी सर। तो अभी हम नॉर्मल, और अभी हमारी नॉर्मल लाइफ की लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं, ये तो स्टूडेंट्स की, कॉलेज सर चीटिंग करते हैं स्कूल में बच्चे, ABCD करते थे ना, ABCD साइन होते थे ना ऐसे, क्या ए का कुछ साइन होता था, E, है ना, तो कुछ साइन बनाते थे बच्चे, है ना। फिर आप खुद सोचो, कोई आपको आंसर नहीं दिखा रहे तो पीछे से जोर से लात मार देना। वो क्या है बेसिकली, आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, दिखा रहे हो, गुस्सा आ रहा है। I was in MBA, मैं MBA का जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त ना मेरे हमारे यहाँ ऑडिटोरियम टाइप में होता था क्लासेस, व्हील चेयर्स जो होती थी उन पे बैठे होते थे, व्हील चेयर विद द बोर्ड एज वेल, जब एग्जाम्स होते। तो I was on the third row, second and first row there was another student, there was a boy named Divya, लड़के का नाम दिव्या था। He was already a qualified mechanical engineer, and उसके पीछे एक another boy who have good work experience। तो बहुत लोगों में मैथ्स अच्छी नहीं होती, बहुत सारे लोग, हम आप अच्छे से चीज समझ सकते हैं बिकॉज हम CS के स्टूडेंट, मेजरली की अच्छी नहीं होती। सो दैट बॉय वाज, जो पीछे 2 नंबर पे लड़का बैठा था, उन्होंने पहले से सेटिंग की हुई थी, तो जो मैकेनिकल इंजीनियर था उसकी मैथ्स अच्छी थी, और जो पीछे वाला था वर्क एक्सपीरियंस वाले की मार्केटिंग अच्छी थी।
ठीक है, they were okay। देखो when you are in a professional course दोस्त कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी अच्छी रैंक आ जाएगी तो जॉब उसकी ज़्यादा अच्छी लगेगी, एक रैंकिंग बेसिस पे जॉब मिलती है। आप ये चीज़ फाइनल में जाके समझते हो तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो फर्स्ट सेकंड एंड आई वाज सिटिंग ऑन द थर्ड रो, बट थर्ड में मैं ऐसा डायगोनल था, मुझे दिख रहे थे दोनों। तो दैट मैं रोज देखता था कि मार्केटिंग की एग्जाम जब था तो वो जो पीछे वाला लड़का था वो वाज गुड इन मार्केटिंग, उसको पूरा पेपर दिखाते थे फेथ कि मैथ्स का जब होगा तो मुझे आ जाएगा। ठीक है फाइन। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि हम इतनी मेहनत करते हैं, देखो ये चीटिंग कर रहे हैं, बट ठीक है, चुप रहना कई जगह ठीक है। तो नेक्स्ट कई बार इंतज़ार करना पड़ता है कुछ चीज़ों का, क्योंकि जब हमें पता होता है कि यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है, तो वेट फॉर सम टाइम, दे विल फाइट। जब मैथ्स का एग्जाम आया तो आई थिंक समझ आ गया क्या हुआ। उस लड़के ने उसको बार बार पूछा कि भाई दिखा दे दिखा दे, बड़े बड़े काफ़ी एज में भी बड़े थे, क्योंकि क्वालिफाइड भी थे वो उस वक्त। तो उसको बार बार ऐसा पीछे से ना पुश कर रहे हैं कैसे, दिखाना दिखाना, वो दिखा भी रहे और नहीं भी दिखा रहे, पता नहीं ट्रिक तो आपको आती होगी। दिखा भी नहीं रहे, ऐसा करके ऐसे करके दिखने को कह रहा थोड़ा और इधर कर, थोड़ा और इधर कर, वो एकदम से इधर कर लेते, फिर कहता सर है। तो मतलब इनडायरेक्टली करना क्या है, नहीं दिखाना है, मुझे पता है। एंड ऑफ कोर्स ही वाज कम्युनिकेटिंग कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तब भी उसका मन नहीं मान रहा था कि ये दिखाएगा नहीं, मुझे दिखाएगा। लास्ट का आधा घंटा बचा, उसने लगभग 2.5 घंटे इस प्रोसेस में निकाल दिए दिखाना। कम से कम 7 से 8 बार वॉशरूम हुआ है, ये भी पता है कम्युनिकेट होता है ना, टीचर को सब कम्युनिकेशन रहता है, ये आपको आता नहीं, आप हर एफर्ट ट्राई कर रहे हो कहीं कुछ मिल जाए, ठीक है। देन दैट फेलो जो पीछे बैठा था, लास्ट हाफ एन आवर बचा, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, तो दिखा नहीं रहे, तो उसने उसको लास्ट में थोड़ा और जोर से बोलना शुरू कर दिया, दिखाना क्यों नहीं दिखा रहा, दिखाना यार आंसर दे दे, बता दे क्यों नहीं बता रहा है। लास्ट में उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, तो ना ऐसा एक नीचे फिर रैंप टाइप होता था, तो उसको जोर से लात मारी, दिखाता क्यों नहीं, ऐसा पीछे से लात। और व्हील वाली चेयर थी, वो सबसे आगे बैठा था, ठीक है, आगे हमारे प्रोफेसर साहब बैठे थे, फ्रंट में था, उसकी व्हील जो है वो रोल होते होते प्रोफेसर साहब के सामने जाके गिरा, एंड उनकी गोदी के अंदर उसका पेपर सब कुछ उनके हाथ में, और वो उनके ऊपर ऐसे गिरा होता, प्रोफेसर साहब ने ऐसे पकड़ा हुआ था उसे। एक इंस्टेंट जब हो जाता तो पकड़ लेते ना कि पकड़ लिया उसको, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे बैठे हुए थे। आप सारी क्लास ऐसे देख के हंस रही है, और जो बच्चों को आता नहीं था, जिनको कॉपियां चेंज या कुछ कर, उस दौरान उनको लेना देना नहीं है उससे, वो क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, जल्दी दिखा, ये तो बाद में होता रहेगा, देख लेंगे, ठीक है। और जिनका पेपर हो चुका था या जिनको आता था सब कुछ, दे स्टार्टेड लाफिंग। तो प्रोफेसर, हमारे जो प्रोफेसर वर हाईली क्वालिफाइड, वेरी इंटेलिजेंट फेलो, they didn't show anything, कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कहा टेक योर सीट, सिट नाइसली। तो जब खत्म हुआ ना एग्जाम, तो उन्होंने कहा सिट हियर ओनली, एग्जाम के बीच में उन्होंने नहीं किया। और वही इमेच्योर प्रोफेसर होता ना, पता क्या करता है, नीचे गिर उधर जा, ऐसा करने लग जाता है, ठीक है, या सामने से लात मार देता। बट व्हाट ही डिड, उसने इंतजार किया, few things are being taught by them too, wait for a while, थोड़ा इंतजार करो। Maturity is when you realize that everything does not require your expression, आपकी हर चीज पे आपका कमेंट जरूरी नहीं है। तो वेट किया, एंड एट द एंड ऑफ एग्जाम सब खत्म हो गया कि बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उसने कहा वेट, और बड़ा ही शालीनता से, बड़े शान से कहते हैं इज इट इलेक्ट्रॉनिक चेयर। तो उसने ये नहीं बोला कि क्या था ये तुम्हारा तरीका, क्या था स्टैंड अप ये वो, तो उसने कहा इज इट इलेक्ट्रॉनिक चेयर। बाकी को तो समझ ही नहीं आया, तो उसने उसको नहीं बोला डायरेक्टली, उसने किसी और को पूछा दैट जिस चेयर पे आप बैठे हो इज इट इलेक्ट्रॉनिक चेयर। तो किसी को समझ नहीं आया, नो सर इट्स नॉट इलेक्ट्रॉनिक चेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग इस तरीके से बात करते थे, तो उन्होंने कहा this starts running automatically, so they're like no sir it doesn't start automatically, so by the time few people understood कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो लड़का खुद खड़ा हो गया, ठीक है, the one who was
ओवर द प्रोफेसर। ऐसे इसने पीछे से मुझे लात मारी, ठीक है, मतलब हमारे हिंदी अलाउड नहीं थी बोलना, तो उसने जो उस में कम्युनिकेशन, हिंदी वॉज नॉट अलाउड। एक तो सबसे बड़ा सुधरना और कम बोलने का तरीका यही हो जाता है, हिंदी इज नॉट अलाउड विद द प्रोफेसर और विद एनी ऑफ द मैनेजमेंट। बच्चों में करते थे कुछ लोग, तो इसने मुझे लात मारी थी बहुत जोर से, और मैं इस वजह से आगे रोटेट होते आगे चला गया। तो किसने किया था, फिर उसने कहा कि सर इसने भी मुझे मेरे एग्जाम के टाइम पे कुछ किया था। उन्होंने कहा, प्रोफेसर ने कहा, ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्लास कैन गो, यू बोथ सिट ओवर हियर, ठीक है, आप दोनों बैठ जाओ। तो उस लड़के को बोला क्या हुआ था, कहता सर मैंने पूरा मार्केटिंग का पेपर दिखाया इसे। He was very hurt. He was very hurt. तो उसने कहा मैंने पूरा मार्केटिंग का पेपर दिखाया, उन्होंने मुझे एक सवाल नहीं दिखाया सर। तो प्रोफेसर ने कुछ बोला नहीं, उसने कहा व्हाट्स द लर्निंग आउट ऑफ दिस टू यू। उन्होंने उसको समझाया काफी अच्छे तरीके से, एंड वो समझा भी, बट दैट वाज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय दैट इंटेलिजेंट प्रोफेसर। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को हैंडल किया, बड़े नाइसली हैंडल किया। एक काफी सारे और भी किस्से होते हैं, आई विल डिस्कस सम अदर टाइम विद यू। वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, द वे दे कम्युनिकेटेड। तो माइट भी कहीं एग्जांपल फिट होगा तो जरूर करूंगा मैं आपको। ओके, सो ये सारे तरीके होते हैं आपके। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन, अगर अच्छा लिखना है तो क्या रिक्वायरमेंट होती है? जस्ट हेड राइटिंग अच्छी होनी जरूरी नहीं है, हेड राइटिंग नहीं भी हो तब भी चलता है, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट शुड बी क्लियर, मतलब कहानी नहीं घुमानी आप, मतलब ऐसा घुमानी नहीं है बातों को, क्लियर और शॉर्ट में होनी चाहिए बात, ठीक है, शॉर्ट हो, क्लियर हो। सो चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस अ न्यू फेलो हु हैज एंटर्ड इन द क्लास एंड उसको कुछ लास्ट क्लास के नोट्स चाहिए, और यू आर सिटिंग इन द क्लास एंड बट यू डोंट नो एनीवन एंड यू वांट नोट्स फ्रॉम द समवन, सो यू गॉट द नंबर फ्रॉम दैट पर्सन, हाउ विल यू टेक्स्ट दैट पर्सन कि मुझे नोट्स भेज दे? क्या बोलेंगे आप उसे, बताइए। थोड़ा फास्ट करते हैं जल्दी से, हिंदी में बता दो, इंग्लिश में कर दो। बोलोगे नहीं उसे, मैं सोचती रहूंगी और मैसेज ही नहीं करूंगी। हाँ है ना, ठीक है। और कुछ लोग वैसे भी करते हैं, वो नोट्स भेज देना जरा, नोट्स भेज दे, और या फिर करते हैं वो नोट्स भेज दिए, नंबर ग्रुप से ले लियो मेरा। सो दैट्स नॉट अ वे। अगर आप किसी सीनियर से, चलो अपने वाले में तो फिर भी चल जाता है, अगर आप सीनियर से, डॉक्टर से, किसी भी आदमी से बात करते हो ना, तो योर बेसिक वर्क इज यू हैव टू टॉक इन अ वेरी नाइस वे विद देम। नाइस वे का मतलब होता है कि आपने उनको रिक्वेस्ट टाइप करनी है, रिक्वेस्ट दैट एस, कुछ आगे पीछे की लाइन ही नहीं है, नोट्स भेज दे, ग्रीटिंग नाम की चीज होती है, प्लीज नोट्स भेज दे, तो इसका मतलब ये थप्पड़ मार रहे हो आप उसको, काइंडली नोट भेज। सो व्हाट यू डू इन दैट केस इज यू टॉक वेरी सॉफ्टली, दैट हेलो, होप यू आर डूइंग वेल, ग्रीटिंग ऑफ द डे। ना नहीं होता नाटक, तो हेलो, होप यू आर डूइंग वेल, एंड as per our communication in the last class, as I requested you to send the notice, may I request you to kindly send the notice, kindly send the notes of the previous class। पर हमें तो ये डेली का काम है, एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, ऑफिस पर्पज में जब आप ऑफिस जाओगे तो प्रॉब्लम आती है मेल लिखने में। हम क्या बोलते हैं, हमें लिखना नहीं आता सर, मेल नहीं लिखना आता, तू लिख के भेज दे, यही होता ना। क्यों नहीं आता? बिकॉज वी डोंट नो द गुड वर्ड्स, हाउ टू टॉक विद डॉक्टर, सीनियर्स, हमें आता नहीं। व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केस, सिंपली आपसे बात करनी है उनसे, काइंडली सेंड मी द नोट्स, काइंडली, प्लीज, रिक्वेस्ट, ये वर्ड ज्यादा यूज करो, एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज ग्रीट, ये हमेशा याद रखो, ग्रीट हमेशा करो, नथिंग कॉस्ट, बट सर ट्रस्ट मी, ग्रीट की वजह से जितने भी आपके इंटरनली प्रॉब्लम सभी होते हैं ना, सेकंड्स में खत्म हो जाते हैं ग्रीट करने के लिए। यू मस्ट हैव टू ग्रीट टू अदर पर्सन, अच्छा रहता है ग्रीट करना, ठीक है। सो जैसे नीचे एक एग्जांपल लिखा है, काइंडली गेट द मैटर डन एट अर्लीस्ट, ये उसने देखो एक टॉन्ट भी मार दिया, धमकी भी दे दी और ऑर्डर भी दे दिया, बट कितना एक अच्छे तरीके से दिया उसने एक ऑर्डर, देख रहा है,
जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, जल्द से जल्दी जल्दी काम हो जाना चाहिए, उसने एक वर्ड आगे ऐड कर दिया, काइंडली, ठीक है, गेट द मैटर डन एट द अर्लीस्ट। तो दिस इज वे राइट, चूज द राइट एप्रोप्रिएट वर्ड, किस जगह कौन सा शब्द लगना है वो जरूर करें। एंड रिवाइज एग्जांपल है, विल यू प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन एज यू मे डीम नेसेसरी इन अ मैटर, ये फीडबैक। क्लियर? नीचे वाली लाइन पढ़ लो, समझ आ जाएगा। ऊपर वाले में भी आपको थोड़ी सी टोन उनकी हार्श है, नीचे वाले के अंदर बहुत एक सॉफ्ट और पोलाइट है। सर हम तो सीनियर हो जाएंगे तो सीनियर को भी बहुत अच्छे से बात करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियरिटी ऑफ वर्ड्स। सर बोलना क्या चाह रहे हो, जैसे कई बार आप देखते हो ना, हम बोलना चाहते हैं और वो इंग्लिश में बोलने का मजबूरी आ जाए, अटकते ही रहते हैं, चलता रहता है, वी नॉट गेटिंग द वर्ड्स, ठीक है। तो दूसरों की तरफ इशारा करते हैं, देना, ठीक है, मतलब क्या है वो वर्ड बता। सो whenever you talk it should be in a proper way। और दूसरी चीज क्लियरिटी ऑफ आइडियाज, क्या बात कर रहे हो कई बार तो समझ ही नहीं आता, यू मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग। क्लियरिटी ऑफ आइडियाज होनी चाहिए, वर्ड्स भी है बट कई बार आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाते। इन ऑफेंसिव लैंग्वेज हमेशा यूज करनी चाहिए। क्या हमें हमेशा इन ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करनी चाहिए? लविका, हमेशा इन ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, है ना? ओके। और ऑफेंसिव लैंग्वेज हमेशा नहीं यूज करनी चाहिए, तो हमें ऑफेंसिव लैंग्वेज हमेशा यूज नहीं करनी चाहिए किसी के भी साथ। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इनऑफेंसिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? किसी को बुरा ना, शुड बी लाइक आप फील गुड नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट बुरा मत, ठीक है। दैट्स हाउ एक्चुअली रिटन में तो कम से कम ये मत करो, ओरल में तो पलट जाओगे कोई बात नहीं, रिटन में तो मत करो, बदल भी नहीं सकते बात को, ठीक है। ल्यूसिड स्टाइल, ये ना हर एक पर्सन की अपनी होती है, सीख नहीं सकते इन चीज़ों को। देर आर एग्जीक्यूटिव हु कल्टिवेट द स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम विच दे रेयरली डिपार्ट, बट स्टाइल हैज टू बी यूनिफॉर्म एंड ल्यूसिड। रीड द फॉलोइंग, रीड करके देखते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर परफॉर्मेंस फॉर दिस क्वार्टर एज अगेंस्ट द टारगेट सेल्स ऑफ 150 टन्स। इट इज heartening to note that you have achieved a total sale of 220 tons. ठीक है। For ahead of the target, I wish to inform you that I am extremely happy over your sustained effort to improve the sales. Will you accept the appreciation on this occasion? मतलब एक तो उसको वो अवार्ड दे रहा है, पैसे बढ़ा रहा है, और ऊपर से इतनी रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि प्लीज एक्सेप्ट कर ले। और हम होते तो बहुत अच्छा काम किया तूने, तो तेरे पैसे बढ़ा दूंगा, बढ़ाएंगे, बढ़ा रहा हूँ, एहसान मान मेरा। अदरवाइज नीचे क्या, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर परफॉर्मेंस, यू हैव एक्सीडेड द टारगेट बाय 70 टन्स फॉर दिस क्वार्टर। आई एम हैप्पी योर सस्टेन्ड एफर्ट्स टू इंप्रूव द सेल्स, माय सिंसियर एप्रिसिएशन। ल्यूसिड स्टाइल होता है कि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, अच्छे तरीके से लिखना। ट्रस्ट मी, लर्न दिस। कोहेरेंट प्रेजेंटेशन, क्या मतलब होता है इसका? Is a virtue where the evidence tendered by the witness before judge is true but incoherent. The judge would not be inclined to rely on it. Incoherent happens due to the confusion thinking. कई बार हम बोलते हैं, क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं, वो ठीक से बता नहीं पाते, जबकि सब कुछ सच है हमारे पास, तब भी हम नहीं कर पाते। पैरा पढ़ो नीचे की एग्जाम्पल की तरह।
क्लियर? ओरल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? टेलीफोनिक हो सकता है, मैसेज, इंटरकॉम, फेस टू फेस, प्रेजेंटेशन, डिक्टेशन, कन्वर्सेशन, रेडियो टेप, स्पीच, ग्रिप लाइन होता है हमारा इनफॉर्मल इन इंटरव्यूज। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का सबसे पहला फैक्टर होता है माय लैंग्वेज यू डोंट अंडरस्टैंड, योर लैंग्वेज आई विल नॉट। मैसेज वो लिखने वाला नहीं है, मैसेज पासिंग ऑफ। तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। फैक्टर अफेक्टिंग ओरल कम्युनिकेशन का क्या सबसे पहला? वी मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग। आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो पहला लैंग्वेज बैरियर, आपकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, पहला सबसे। दूसरा, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, मतलब समझ आया इसका? आते हुए भी आपको नर्वसनेस है और आप गूगल पे चेक करोगे ना, व्हाट इज द बिगेस्ट फियर ऑफ द मैन और ह्यूमन, तो डेथ तो होता ही है। सर डेथ से भी ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग है, डेथ से भी ज्यादा इंग्लिश में बोलना है। गूगल पे देखोगे ना अगर, व्हाट इज द बिगेस्ट फियर ऑफ ह्यूमन और मैनकाइंड, वो डेथ नहीं है, मौत तो है ही है, सेकंड नंबर पे आ चुका है, पब्लिक स्पीकिंग पहले नंबर पे है, उसमें हर सेकंड मरते हैं। ठीक है, कई तो इस प्रोसेस से गुजरे हैं यहाँ पर, कई छुट्टियां मार लेते थे। ठीक है, सो आई विल मेक श्योर कि आप लोग जो अब आए हो इस प्रोसेस से जरूर जाओ। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स लाइक ऑडियंस साइज, साइज ऑफ ऑडियंस, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस अटैच्ड टू द इंफॉर्मेशन, फियर ऑफ द बॉस, फियर ऑफ द स्टेटस। अच्छा, ये जो हम नहीं बोल पाते हो, फियर ऑफ बॉस नहीं है, फियर ऑफ स्टेटस है। फियर ऑफ स्टेटस का मतलब पता है क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फियर ऑफ स्टेटस? मे बी हम कुछ ऐसा गलत ना बोल दें, हमारी बेइज्जती हो जाए, लोग हमारे बारे में क्या सोचे, क्या सोचे। तो लोग आपके बारे में सोचते ही नहीं। एंड ऑफ द डे पता चलता है कि हम शायद बोल लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि लोग हमारे बारे में इतना सोचते नहीं। भाई आप या तो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई मिनिस्टर हो, तो लोग आपके बारे में सोचे भी वैल्यू रखते हैं हमारे बारे में। आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, किसको क्या फर्क पड़ता है? तो व्हाट आर द बेस्ट वे ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन? जैसे थोड़ी देर में आपको बोलना पड़ेगा ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या बेस्ट चीज है। सबसे पहला, ओरल कम्युनिकेशन के फायदे क्या है? ओरल कम्युनिकेशन सेव्स द टाइम। रिटन कम्युनिकेशन में समय बड़ा लगता है, एग्री? कैसे? सोचो, लिखो, दो, फिर फीडबैक, वो शायद वापसी कब देगा रिप्लाई। तो ओरल में क्या होता है? इंस्टेंट रिप्लाई। ओरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू फीडबैक और क्लैरिफिकेशन, सेम ऑन द स्पॉट आपको। ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कन्वे द मैसेज मोर एप्रोप्रिएटली एंड सूटेबल टोन। पॉसिबल है? हाँ सर, रिटन में ना कई बार मैसेज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर, मैसेज में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। मैसेज पे आपको सामने वाले की टोन नहीं समझ आती, आप उसको पढ़ते हो अपने मूड के हिसाब से, ठीक है? एंड जैसे सॉन्ग्स होते हैं, वही सॉन्ग आप दो टाइम पे सुनो, सैड एंड गुड, तो आपको वो सॉन्ग अलग मैसेज कम्युनिकेट करता है, ठीक है? तो सेम वे रिटन मैसेज हमेशा एक अलग तरीके का एक साउंड देता है, मतलब जब आपका मन होता है उस हिसाब से पढ़ा जाता है, ठीक है? एंड ओरल में क्या होता है, सामने वाले की टोन पढ़ लेते हो, किस तरीके से बोल रहे हो। ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन इन द मैनेजमेंट। इफेक्टिव टूल है क्योंकि चिल्ला के बात कर रहे हो, जोश भर रहे हो लोगों में, ठीक? ओरल कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव मैनेजमेंट का टूल। ओरल कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन विद द ग्रुप, ठीक है? अब तो और भी तरीके आ चुके हैं ग्रुप में बात करने के, ग्रुप मैसेजेस भी नाम की एक चीज है, बट स्टिल ओरल कम्युनिकेशन ग्रुप में बात करने का आज भी पहला अच्छा तरीका। जैसे अगर लार्ज पॉपुलेशन को, पब्लिक को मैसेज देना है, तो हमारे पॉलिटिशियंस के लीडर्स कैसे देते हैं? स्टेज से देते ना, वो कौन सा है? ओरल। ओरल कम्युनिकेशन इज इकोनॉमिक ऑल्सो सर, लगता क्या है? कुछ भी कॉस्ट नहीं देता है ओरल कम्युनिकेशन, बोलते रहो जितना बोलना है। विड्रॉल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली एन इजी टास्क, जो मैंने आपको बताया।
मैंने कब बोला, समझ आया? विड्रॉल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन का मतलब कभी भी पलट जाओ, मैंने कब बोला, क्योंकि कोई सबूत तो है नहीं इन अनटिल यू हैव रिकॉर्डिंग। तो जैसे आप देखते हो हमारे लीडर्स कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जैसे एक लीडर थे, उन्होंने बोला कि दिल्ली के अंदर इस बार पटाखे नहीं जलाए गए, मैं बहुत खुश हूँ। पटाखों की वजह से पोल्यूशन होता था, थोड़े दिन पहले का मैसेज था, एग्री। पटाखे नहीं जलाए गए, पहले बोला गया कि पटाखों की वजह से पोल्यूशन होता है, एग्री। फिर बोला गया इस बार पटाखे नहीं जलाए गए, मैं बहुत थैंकफुल हूँ दिल्ली की पॉपुलेशन का, ओके यहाँ तक भी ठीक है। फिर सच में पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो फिर रिप्लाई आता है कि 25% पॉल्यूशन में कमी आई इस बार, ऑड इवन लेके आएंगे। तो सर अगर फायर क्रैकर्स वाज द रीजन फॉर पॉल्यूशन, जिसको आपने बंद कर दिया तो पॉल्यूशन हुआ क्यों? someone should ask the question to them. And if that was not the reason, आपने कहा फायर क्रैकर्स तो जले ही नहीं, तो फिर पॉल्यूशन कैसे आया? अगर जले थे तो आपने झूठ क्यों बोला? ठीक है, अगर नहीं जले थे तो आपने उनको बंद क्यों किया? क्योंकि पॉल्यूशन तो फिर भी आया। तो जो एक्चुअल रीजन था आप उस पर हिट करो ना। देन टेलीफोन के कुछ एटिकेट्स होते हैं बात करने के। टेलीफोन के एटिकेट्स क्या होते हैं बात करने के? हाउ डू यू टॉक ऑन टेलीफोन, कैसे बात करते हैं? हाँ बोल, रीड कर सीधे हाँ बोल, ठीक है। कई बार जैसे समटाइम्स आई पिक द फोन, कई बार मैं बच्चों का फोन पिक कर लेता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि सर वो क्लास जो है ना वो मैं आ जाऊंगा नहीं, मैं कल आऊंगा। अरे भाई आप कौन हो? 300 बच्चों के बीच में आप कौन हो? या तो हमारा कोई ऐसा इंसिडेंस हो कि आपको याद रखूँ मैं, ठीक है। दूसरा, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे कई लोग, सर वो मैं कल की क्लास में आया नहीं था, तो मैं नेक्स्ट क्लास में फीडबैक हुआ है उसका बैकअप ले सकता। अरे भाई तुम कौन हो? पहले तो अपना नाम बताओ, फिर उसके बाद ये बताओ कि कौन सा तुम्हारा, तुम कब नहीं आए थे, कौन। तो ऑलवेज गिव डिटेल्स अबाउट यू। आप प्रधानमंत्री नहीं हो। व्हेनेवर यू टॉक टू एनी पर्सन, until this is a very informal communication, of course you can't tell to your mom and dad every time, hello I am Mr. X and your son, I stay here only, I need a food, ऐसा नहीं हो सकता। But if it is formal communication, even if the fellow knows you, even if you're calling to a doctor, if you're calling to any of the professional, if you're calling to any other person other than your family or your relatives, first tell them that who are you. Don't expect that they have saved your number, they remember everything about you. Maybe आपकी लाइफ में वो एक हो डॉक्टर, बट उस डॉक्टर की लाइफ में आप जैसे हजारों पेशेंट्स हैं। और अगर आपको फिर पहचाने ना, जो ईगो हर्ट होती है सर, उसका तो कोई लेवल ही नहीं। मतलब आपसे पूछ ले हु आर यू, मुझसे पूछा जा रहा है हु एम आई। अरे आप अपने घर पे राजा बेटा या एक्सेट्रा हो, आप वहां 300-500 आप जैसे आते, कैसे याद रहेगा उनको? ठीक है, तो इस बेइज्जती से बचने का एक तरीका बाद में बताना पड़ता ही है, तो पहले बता। सिंपल सी चीज रहती है कि इफ यू आर कॉलिंग एनीवन, इफ दैट्स नॉट योर फ्रेंड और रिलेटिव, ठीक है, यू मे टेल दैट सर। अगर उसको जानता भी हो तो ये कहेगा यस आई नो, तो वो बड़ी खुशी से फील होती है कि भाई हमें जानता सामने होगा, ठीक है। तो इट्स बेटर टू टेल हु आर, ठीक है। इज इट क्लियर? सो ऑलवेज गिव योर इंट्रोडक्शन, सीधा ही नहीं बोल। और दूसरा, इफ समवन इज कॉलिंग यू तो हाँ बोल, सामने वाला ग्रीट कर रहा है तो रिप्लाई कर दो। अगर मैं बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग तो ठीक है गुड मॉर्निंग। कई लोगों को मैंने देखा गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग में कुछ जाएगा, इतनी कंजूसी क्यों शब्दों की, ठीक है। GM ऐसी जरूरत ही क्या, मत कर भाई, कोई जरूरी तो नहीं है करना, कहीं लिखा तो नहीं शास्त्रों में कि करना जरूरी है, तुम्हें मत ही करो। इतनी क्या कंजूसी की 2 शब्द एक्स्ट्रा बोल दोगे तो कुछ हो जाएगा। तो ऑलवेज बी नाइस, पोलाइट एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। इफ यू आर पिकिंग द कॉल देन वेट फॉर द अदर पर्सन टू स्पीक। और दूसरे वाला भी कई बार ऐसा होता है फोन उठा के, ठीक है, आप बोलते हो भाई कौन बोल रहे हो, पहचान, ठीक है, मुझे नहीं पहचाना। अरे तो तुझे कैसे पहचानेंगे बता भाई, मेरी आवाज नहीं पहचानी आपने, ठीक है। ये थोड़े से
और सामने वाला बिजी होता है उस टाइम पे, तो बड़ा इरिटेशन होती है इन चीज़ों से। एक अपना इंट्रोडक्शन दो, आपका काम दो, काम को बस समझाओ पूरा क्लियरली, उसके बाद में जब टाइम दो उस टाइम कॉल करो, जिस टाइम पे सामने वाला टाइम दे आपको उस टाइम पे कॉल करो। ट्राई अवॉइडिंग बिजनेस कॉल्स आफ्टर बिजनेस आवर्स, ट्राई अवॉइडिंग अनटिल अनलेस दैट पर्सन हैज टोल्ड यू। ठीक है, फोन करके ये कभी नहीं पूछना चाहिए सो रहे थे क्या, वो फोन कैसे उठाएगा। ठीक है, होता है ये, बहुत बार होता है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग जैसा देश वैसा भेष। when you are in Rome, behave like Romans। आप जैसी जगह रह रहे हो, आपको पता है कि नॉर्मली लोग 8 साढ़े 8 के बाद उठते हैं, उनका अपना डेली रूटीन चलता होगा, तो क्यों ना ऑफिस आवर्स में कॉल किया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार ये चीज़ें फेस करता हूँ, so I know a lot of clients, a lot of students, many a times given time to them, they call around early in the 7:30, so it's a high level of frustration but I can't show। ठीक है, अब 7:30 किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे नॉर्मली बात करें। when you call at night, so everyone has a family, if I call at night to you और वे क्या हाल है, it will not look nice। तो सेम थिंग इज, हमेशा आप किसी को भी कॉल करते हो, वंस यू इन जॉब, तो अपने बॉस भी अगर आपको कॉल करता है रात को, you are not supposed to entertain that। You can simply tell that sir, it's not a comfortable time to talk, can we talk tomorrow। बट ये बड़ी ईगो प्रॉब्लम है हम में, किसी ने ये बोल दिया ना इट्स नॉट अ कंफर्टेबल टाइम, कैन वी टॉक टुमारो, तो उठाया क्यों था। ठीक है, तो अब ये समझो कि आपको रिस्पेक्ट दी कि आपका फोन उठाया है सामने वाले ने और ये बोला कि कैन वी टॉक टुमारो ऑन द सेम मैटर, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप खुद कॉल करो। मे बी इफ इट्स नॉट इमरजेंसी है तो कॉल करो। इफ यू आर अ डॉक्टर, यू आर सपोज टू पिक द कॉल, रीजन मीन इमरजेंसी होगी, हो सकती है ना। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, रात को 10:30 11 बजे आपका क्लाइंट फोन कर रहा है, रिटर्न कल लग जाएगी भाई, रात को तो लगने से रही। ठीक है, तो ये सारी बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, मैसेज डाल के छोड़ दो, अगले को कंफर्टेबल होगा तो रिप्लाई करेगा। इफ समवन सेंड्स यू ऑफिशियल कम्युनिकेशन लेट एट द नाइट, यू शुड नॉट रीड देम, रीड करो, रिप्लाई मत करो, बट नेक्स्ट मॉर्निंग मस्ट रिप्लाई करो। लड़ना नहीं है किसी। ठीक है, तो टेलीफोन एटिकेट्स क्या होते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, और आई एम फ्रॉम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, माय नेम इज दिस, सिंपली बताना चाहिए। एंड समझ आ गया, आपकी कुछ स्टाइल वाले वर्ड लिखे हैं बी पॉइंट में। जैसे कई बार आप फोन करते हो तो सामने वाला, आप हेलो बोलते हो, सामने से आता है ये यस हमारी लैंग्वेज में हाँ बोल, हाँ, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वी शुड लर्न दिस थिंग्स, इट्स नॉट अ वन डे वर्क। Then when placing a call, always state your name along with the name of the person you are calling to। My name is this, am I talking to Mr. X? अच्छा लगता है तो। Example, hello, my name is John Doe and I'm from XYZ Corporation, may I please speak to, अब यहाँ please बोलते तो हम नीचे गिर जाते हैं, may I please speak to Mr. Jane Smith। तो बहुत गंदी चीज़ तो नहीं है, शायद सामने वाला बुरा तो नहीं मानेगा, ये श्योर, that is 100% sure। Clear? कई लोगों को मैंने देखा बड़े ही बदतमीज होते हैं, अपना सरनेम बताते हैं। There is one of my client, एक मेरे client है, and every time he calls and he says गर्ग बोल रहा हूँ। I know him personally, भी मैं जानता हूँ, फैमिली वाइज भी, सब तरीके से अच्छे से रिलेशन है मेरा, बट ऑलवेज आई टेल कौन गर्ग बोल रहा है। आई नो हिम वेरी वेल, उसका नंबर भी सेव है मेरे पास, सब कुछ है, but just to tell him that it's not right way to talk। ठीक है, कौन गर्ग, अरे गर्ग कट। ठीक है, अगली बार नाम बताएगा, अरे सर मैं मिस्टर एक्स गर्ग बोल रहा हूँ, हाँ तो बोलिए। तो ये स्टाइल नहीं मारना, अप डाउन नहीं है कि आप उसमें बोल रहे हो मैं डॉन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑलवेज सिंपली बताइए कि आपका पूरा नाम बताओ, सर दुनिया में कितने गर्ग होंगे, कितने गुप्ता होंगे, कितने धमीजा होंगे, कितने सारे लोग होंगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ, अरे कौन है भाई, ऐसा कौन है। बनाते हैं कुछ लोग अपना ना, वो बनाने के लिए ट्राई करते हैं। वी शुड नॉट एंटरटेन इवन, अगर आप चाहो तो करो, बट कोई जरूरी नहीं है, अगली बार से नहीं करेंगे।
बी सेंसिटिव टू द टोन ऑफ योर वॉइस। जब आप टेलीफोन पे बात करो तो देखा होगा आपने कई लोगों को, मतलब शायद आप में से भी कुछ लोग हों ऐसे, सर वो फोन में घुस, मतलब कई ऐसे होते हैं कि बस वो फोन में, अगर भगवान अलाउ कर दे उनको एक लाइफ के फोन में घुस जाए तो शायद उसके अंदर ही चले जाए। वो दे टॉक लाइक दिस एंड वो यहाँ से बात करते चिल्ला के वो 2-3 बिल्डिंग तक सुनाई देता है। जितना दूर का टेलीफोन है उस वे पे उनकी टोन होती है। मतलब अगर दिल्ली का पड़ोसी का कॉल है तो नॉर्मल है, अगर वही कलकत्ता से आ गया ऑटोमेटिक तेज बोलना शुरू, ठीक है, ऐसे भी होते। तो बी नाइस इन योर टोन। सामने वाले के शायद उनके पास रिलायंस का फोन और ऑलरेडी डबल आवाज आ रही हो। कई बार जैसे बात करते हैं तो हमें साथ में खड़े होते तो सामने आवाज आ रही होती है, ठीक है, एज इफ स्पीकर ऑन किया हो उन्होंने। टोन थोड़ी सी हमेशा नीचे रखी, सामने वाला बोले कि अगर थोड़ा जोर से बोलो तो बोल सकते हो, उसके फोन में प्रॉब्लम है, हमें चिल्लाने की जरूरत। बी सेंसिटिव टू योर टोन एंड sit up in your chair and stand during the conversation. When you are at home, use personal tape recorder to privately record your own conversation. You will then hear how your sounds to others. समझ आया क्या मतलब है? अगर आपको अपने ऊपर शक हो कोई भी तो आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो। ट्राई इट, आपको शर्म आएगी अपने आप से। ट्राई इट एनी डे। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आजकल तो आता ही है। ये तब उस जमाने की किताब है जब हम लैंडलाइन की बात करते तो उसमें रिकॉर्डर अलग से रखता था। आज आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, ट्राई करो। अब अपनी एक हफ्ते के रिकॉर्डिंग्स को, कॉल्स को रिकॉर्ड करो एंड लिसन टू देम। यू विल रियलाइज दैट आप कितनी फालतू बातें करते हो। द वे यू टॉक इज नॉट अ वे यू शुड टॉक। कितना गंदा टोन है आपका बात करने का। नॉट एवरीवन बट फ्यू ऑफ देम कैन रिलेट टू मी, ठीक है। इट्स रियली वेरी बैड। आज तो नहीं सुधरे हम, वेरी सून 2 to 3 years डाउन द लाइन, या तो आपको ये लगता है कि आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे, और अगर बनोगे तो उस साल तो आप बदल नहीं पाओगे। फिर नर्वसनेस होती है क्योंकि उस एज में आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्यों ना उसको एक पोलाइट वे में चेंज करके, ठीक है। व्हेनेवर यू मैसेज एनीवन ऑलवेज मेक श्योर, एक थंब रूल, नाम लिखो अपना नीचे। मेक श्योर, हमेशा नाम लिखो अपना नीचे। थिंक थ्रू एग्जैक्टली व्हाट यू प्लान एंड से डिस्कस बिफोर यू प्लेस अ कॉल। समझ आ गया? जो बात करनी है उससे पहले सोच के करो। फोन करने के बाद में ये मत बोलो अच्छा 1 सेकंड होल्ड करना देखता हूँ, ये भी होता है। सामने वाले शायद सर गाड़ी रोक के या बाइक या स्कूटी रोक के आपसे बात कर रहे हो। डू नॉट अलाउ इंटरप्शन अकर्स ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। सर आप कॉल कर रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंट, पीछे बच्चे रो रहे हैं, ठीक है, पीछे हॉर्न की आवाजें आ रही है गाड़ियों की। अगर आपको किसी से बात करनी है इंपॉर्टेंटली तो या तो अगर आपके घर पे छोटे बच्चे, आप ये तो नहीं कह सकते उनको घर से बाहर निकाल दो, पर कम से कम गेट लॉक करके वॉशरूम में या कहाँ पर जहाँ पर आपको आवाज ना आए। पीछे मम्मी जोर जोर से चिल्ला रही है, ठीक है, गालियां दे रही है, आपको आवाजें आ रही है, सामने वाले को आपके घर की पूरी हिस्ट्री पता चल रही है कि आपका निकनेम क्या है घर पे, यू नो दे आर गेटिंग एवरीथिंग। ये सोनू मोनू कहाँ पर है, मिल नहीं रहा है, पीछे से आवाज आती है मम्मी वो फोन पे बात कर रही है, ठीक है। तो सामने वाले को आपकी पूरी घर की हिस्ट्री पता चल रही है कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका घर पे निकनेम क्या है, आपकी इज्जत कितनी है वहां पर, ठीक है। पीछे से मम्मी कह रही है कि सारा दिन फोन पे लगी रहती है, इसको तो कोई काम धंधा है ही नहीं, ये वो, इसके दोस्त ऐसे हैं, तो उसको पूरी आपकी कहानी पता चल चुकी है। और यही जॉब पे इंटरव्यू का कॉल हो, ठीक है, इंटरव्यू कॉल होता है और उस टाइम पे आपकी मम्मी पीछे से या पापा या भाई बहन चिल्ला रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, या आवाज, क्या करना है सर? ऐसा तो नहीं बच्चों को निकाल दे रोड पे, तो मैं हॉर्न तो बंद नहीं करवा सकता। व्हाट कैन आई डू इन दैट केस? देन मैं क्या कर सकता हूँ? आप सिंपली उनको बोलिए सर सबके घर पे बच्चे होते हैं, सब ड्राइव करते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम हो। आप उस टाइम उनको बोलिए कैन आई कॉल यू इन 2 minutes, कैन आई कॉल यू बैक इन 2 minutes, ठीक है। सामने वाले ने अगर थोड़ी सी अक्कल है तो वो बुरा नहीं मानेगा, वो सिंपली कहेगा कैन आई कॉल यू बैक इन 2 minutes, आई विल कॉल यू बैक इन 1 minute। आप उस 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपना एक स्पेस ढूंढ लो जहाँ पर आप बात कर सकते हो। अगर बाइक है तो किसी गली में जाके बात करो, बाइक पे वैसे भी नहीं उठानी चाहिए आपको कॉल्स। गाड़ी है तो गाड़ी लॉक करके साइड में लगा के करो। घर पे हो अगर तो ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पर आप बात कर सकते हो। क्लियर? और एक जो मैं नोटिस करता हूँ कि जब आप किसी से बात करते हो तो आपके पेरेंट्स पीछे से खड़े होकर सुनते रहते हो, या भाई बहन, ठीक है।
और फिर उसके बाद में वो पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ऐसा बोल, ऐसे बोला, अब ऐसा बोल, ठीक है। या तो आप बात करो या वो बात करे, या फिर सामने वाले को बताओ कि सर वी आर ऑन स्पीकर एंड दैट पर्सन इज आल्सो, पर इतने एडिक्वेट तो सर हम अमेरिका वाले बन जाएंगे, हम इतने अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, फिर इतने नहीं भी हो सकते, बट एटलीस्ट बी काम व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, ठीक है। Then don't allow interruption, and then especially when you are leaving message, speak clearly and slowly. समझ आया? जब एक अपने यहाँ ये सिस्टम नहीं है वॉइस मैसेज छोड़ने का, हम बिलीव नहीं करते वॉइस मैसेज। जैसे हमारे पास ऑप्शन है ना व्हाट्सएप में, बट रेयरली वी गिव द वॉइस मैसेज, हम बहुत रेयर छोड़ते हैं व्हाट्सएप पे भी, देते ही नहीं है, क्योंकि वॉइस मैसेज सुनते हैं ना जब, तो सब सुन लेते हैं। और हमारे तो इतने सीक्रेट टॉक्स होते हैं, जैसे ISI के भी इतने नहीं होते हैं उनके प्लान जितने हमारे होते हैं। So we don't try to give messages, but if ever you live in US और आपकी जॉब लग जाती है किसी अच्छी कंट्री में, या थोड़ा सा हम खुद भी इन चीज़ों को आगे आने वाले समय में एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों कर चुके हैं, तो वॉइस टेप्स होते हैं जो, तो उसमें मैसेज को क्लियरली बोलो। कुछ लोग इतना फास्ट बोलते हैं, इट सीम्स लाइक देयर इज अ डॉग बिहाइंड देम, बस भागना है, बहुत फास्ट होता है। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, मैंने कई बार प्रेजेंटेशन के टाइम में कुछ लोगों को बोला है, डोंट स्पीक दैट फास्ट, नर्वसनेस का साइन होता है। बिल्ड अ हैबिट ऑफ ऑलवेज टर्निंग ऑफ योर सेल फोन रिंगर व्हेन एंटरिंग टू मीटिंग, रेस्टोरेंट, थिएटर, क्लासेस और अदर प्लेसेस। जब आप क्लास में आओ तो अपने फोन को साइलेंट मोड पे पहले डालिए। वहाँ लिखा नहीं होता है कि आप साइलेंट पे रखो, तब भी आप साइलेंट में डाल के, आज भी बजा था ना किसी ने, तो क्लास में बहुत बार होता है, इट्स नॉट अ वन स्टूडेंट, मेनी अ टाइम्स, एंड इट्स नॉट इवन अ मैच्योरिटी कि जैसे ही फोन बजा सब कुछ साइड में हटा, खड़े हो उसकी बेइज्जती करना शुरू, वो भी मैच्योरिटी नहीं, क्योंकि शायद उसको भी पता है, ठीक है एक बार हो गया होगा, गलती से हो जाता है, बिकॉज मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे हो सकती है, तो इट्स ओके, स्टे काम। दोबारा हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपको बोलना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। और कभी भी पब्लिक प्लेसेस में उन्होंने जाओ ना, तो अपने रिंगटोन्स मत लगाया करो, ठीक है। लंबे लंबे बॉलीवुड के और भोजपुरी गाने आ रहे होंगे, अच्छा आपकी बेइज्जती होती है सबके सामने, ट्रस्ट में, बड़े ही एक अजीब से लगते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप सबको सब कुछ बता देते हैं। तो कुछ पर्सनल चीजें होती है, उनको पर्सनल रखना चाहिए। मेरे स्टूडेंट होते हैं शुभम, बड़ा ही एक अजीब सा स्टूडेंट, जिसको कहते हैं ना, आई थिंक 8-9 years बैक स्टूडेंट था मेरा, टैक्स की क्लास का, लेट आया था, तो मैंने कहा क्लास के बाहर बैठा, तो ही वॉज लेट एंड आई आस्क्ड हिम टू सिट आउटसाइड द क्लास के बाहर बैठ, तो ही वॉज, पहला काउच था बाहर लगा हुआ, वो बैठा था उस पर, एंड गेट बंद इधर से, जैसे उसका फोन रिंग, एक तो वो जो चाइना वाले फोन आते थे ना, वो फोन कम डीजे ज्यादा होते थे, तो उस पे उसका गाना बज रहा है, वो एक कैसे बताएं समथिंग टोन बजी है दैट लाउड, ये बैग में फोन है, तब तक तो आपकी पूरी जिंदगी की हिस्ट्री जो है सबको, पूरी क्लास को पता चल जाती है। जब तक आप उसको साइलेंट करने लगते हो, तब तक तो आपकी पूरी लाइफ सबके सामने कि ये क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में। उसके बाद में आप तो बेवकूफ और बदतमीज तो हो ही, तो फोन उठा के, हाँ बोल, तुझे कहा था मैंने फोन नहीं करना है, मुझे जिंदगी में तुझसे बात नहीं करनी है, कि वो स्टार्ट हो जाओ यहाँ पर। अरे आप पब्लिक प्लेस पे हो, ठीक है, जब मैंने तुझे फोन किया तूने नहीं उठाया, ये वो इन चीजों पे अपना, अरे बाहर चले जाओ, एक तो आपकी आवाज इतनी हाई, ठीक है। अब उस वक्त क्लास में क्या हो रहा होगा सोचो, आप में से एक जना अगर फॉर एग्जांपल बाहर उसके टोन बज रहा है, और क्लास के अंदर ये कंप्लीट कन्वर्सेशन उनकी वेरी क्लियर स्पीकर के तौर पे आ रही है, आप बेइज्जती के पात्र बन रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, होल क्लास वाज लाफिंग, कंप्लीट एक फुल फ्लेज्ड क्लास हंस रही है उसमें। देन आई आस्क्ड हिम टू प्लीज सिट इन द क्लास, ब्रेक के बाद, ठीक है, एवरीवन वाज लुकिंग एट हिम लाइक एज इफ ही इज फ्रॉम सम जू, ठीक है। और फिर तो उसके दोस्त पूछेंगे क्या हुआ, ओके, इट्स नॉट अ वन डे, ऑलमोस्ट उसका डेली था, डेली नए गाने। Then don't allow yourself to distract by other activities while speaking on the telephone, होता है ये भी, टेलीफोन
टेलीफोन पे बात करते करते आप है ना ये चलता रहता है, पेन, टेलीफोन या दूसरी चीजें या सामान उठाना उठाना, सब कुछ काम चलता रहता है। तो एक टाइम पे एक काम करो, एक टाइम पे दो करोगे, दोनों ठीक से नहीं होंगे, क्योंकि अपने से एक भी ठीक से नहीं होता, मल्टी टैलेंटेड हम नहीं। बट सर हमारा लाइफ अलग है, हमें जियो ने फ्री दिया हुआ है, हम कंप्लीट डे फोन पे लगे रहते हैं। तो आप कह रहे हो एक टाइम पे एक काम करो, तो आप कहना चाह रहे हो कि हम कुछ और करें ना जिंदगी में। फिर वो एक अलग सिचुएशन है। किताब नॉर्मल लोगों के लिए बनी है जिनका टेलीफोन बहुत कम होता है। फिर आता है विजुअल कम्युनिकेशन। व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन? विजुअल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं सर? ग्राफ, टेबल जो दिखते हैं, बोलते हैं, ग्राफिक्स, टेबल्स, मॉडल, डेमोन्स्ट्रेशन, साइड क्लिप, चार्ट्स, प्रिंट्स एक्सेट्रा। क्या फायदे होते हैं विजुअल और ऑडियो विजुअल्स के सर? They convey the information in a manner that makes the data and any relationship between the data. Data और जो actual facts है उनके बीच का relationship आपको बताता है। जैसे हम बताते हैं ना दिल्ली में pollution अभी इतना है, तो अगर ग्राफिकल तरीके से बताया जाए कि लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर इतना था, तो हम बता सकते हैं ना कि रिलेशनशिप विद द करंट सिचुएशन इन द लास्ट ईयर हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल कौन से होते हैं सर? ऑडियो विजुअल होते हैं आपके टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट के मल्टीमीडिया, जो आजकल मोबाइल्स पे आपके क्लिप्स, यूट्यूब, ये सारे हैं। ठीक है, आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक एक साथ जाएगा नॉन वर्बल का, बीच में उसको छोड़ देंगे।